Hello students, how are you? I hope you are very well, taking good care of yourselves and your family and also your studies, right? Because now it's high time you get used to this pattern and take good care of yourself and your studies as well. Well, as you may be knowing, my name is Rekha Singh and we are here to study the subject biology, and in the last class we had studied about the topic which is nutrition in plants. We had started that topic. We had also discussed about autotrophic nutrition. We had discussed about heterotrophic nutrition, the types of heterotrophic, types of autotrophic nutritions. We have already covered those topics. In the last class, we had ended at the topic which was the site of photosynthesis, right? And that was the chloroplast. We had drawn the diagram of the chloroplast and it was something like this, right? If just for a short revision time, we need to review this diagram. This was the diagram of the chloroplast, which is the site of photosynthesis. This was the stroma and this was the grana. This I tell you because when we study the mechanism of photosynthesis, you would know the exact site where it is occurring. And I told you this thylakoids, which are green in color, which I have made green in color, are the exact site where chlorophyll molecules are present, right? So this was what we have studied up till now. Now, from today, the topic which we are going to study under the same portion, that is nutrition in plants, because it is a little we're going a little detailed manner. We're going in a little detailed manner. The points which we're going to study today are requirements of photosynthesis. We have already studied the definition. We have studied the site for photosynthesis, and now we are going to study about the requirements for photosynthesis. So I hope you're ready with your registers and pens, as I always say, because writing helps you learn better. So as you get ready, we start the topic, that is nutrition in plants, the subtopic which is requirements for photosynthesis. So, as you may be knowing, what are the requirements for photosynthesis or the essential things for photosynthesis? They are, first is sunlight. As you know, sunlight is essential. Without sunlight, the process does not start even. Second is chlorophyll, right? The green colored pigment. Third is carbon dioxide. And fourth is water, right? So these are the requirements for photosynthesis, and now we are going to study them in a little detailed manner, right? What, from where they are obtained, how they help, and what is the basic mechanism, how they work, right? So which will help us or enable us to know about photosynthesis in a better manner, right? So first we will be discussing about the requirement which is sunlight. One by one हम इसको लेते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? सनलाइट के बारे में, ठीक है? So when we talk about sunlight, you know, sunlight or the solar energy or the sun is the ultimate source of energy for every living organism, because plants वो उस energy को harvest करते हैं, वो अब खुद के लिए food बनाते हैं, हमारे लिए भी बनाते हैं, and indirectly each and every organism is depending on plants and plants are depending on the solar energy. So sun is the ultimate source of energy for every living being, right? अब हम जानते हैं जो सनलाइट हमारे अर्थ पे आती है, we can see a lot of light when the sun is shining bright, right?
लेकिन the waves coming from the sun are not just those waves or that light which we can see. जो ये सारे सनलाइट जो हमें दिखती है उसके साथ साथ और कई वेव्स ऐसे आते हैं, कई रेडिएशंस ऐसे आते हैं सन से जो हमें नजर नहीं आते हैं, बिकॉज दे हैव अ वेवलेंथ विच इज डिफरेंट. जो वेव्स एक वेवलेंथ की कैटेगरी में फॉल करते हैं विच इज अराउंड 390 to 780 नैनोमीटर्स, या हम कह सकते हैं 400 to 700 नैनोमीटर्स, वो लाइट हम देख सकते हैं. थोड़ा सा मैं अगर आपको डिटेल में समझाऊं तो जैसे अगर मान लो दिस इज द सन, सन से बहुत सारी वेव्स आती हैं जो हमारे अर्थ पे फॉल करती हैं, एंड टोटली अगर हम उसके बारे में बात करें तो कई बार हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं, या द होल थिंग कैन बी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, right? So there are many waves coming down, and in this there is a portion which is the visible light. जो हमें दिखती है वो है visible light, जो fall करती है somewhere around 380 nanometers और 780 nanometers के बीच में. Approximately we can say somewhere you can just write this as 390 nanometers, और आप इसको 400 से 700 की रेंज हम बताते हैं which is visible light. अब ये nanometers you must be, it is a concept related to physics, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, जिन waves की wavelength आप जानते हो ना, the length of waves, crests and troughs जो आपने पढ़ा होगा in physics, या तो जिनकी wavelength इस रेंज में फॉल करती है उन वेव्स को हम देख सकते हैं, या और रेडिएशंस जो आ रहे हैं दैट इज विजिबल लाइट, हमें नजर आते हैं. जो इससे शॉर्टर वेवलेंथ के हैं या लॉन्गर वेवलेंथ के हैं वो हमें नजर नहीं आते, बट दे डू एक्सिस्ट दोज वेव्स. सो फोटोसिंथेसिस occurs only in this visible range, right? विजिबल लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है. और आप जानते हो visible light is made up of what colors? You must be knowing, right? Yeah, you know about that. So that is Vibgyor, right? Violet, indigo, blue, then there is green color, then there is orange, red, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. This is following Vibgyor. This is the visible light, and these are the 7 colors which are present in visible light, right? This was, you already know it. मैंने जो ये 3 कलर्स हाईलाइट किए हैं, मुझे इनके बारे में आपको बताना है. ये जो फॉल करते हैं विजिबल लाइट, फोटोसिंथेसिस पूरे में होता है, दैट इज व्हाई इज इट अकरिंग, बिकॉज क्लोरोफिल हैज द कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब दीज वेवलेंथ्स. लेकिन सबसे मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होता है दैट इज इन द रेड लाइट. ब्लू लाइट में भी फोटोसिंथेसिस होता है. सो फोटोसिंथेसिस अकर्स इन रेड लाइट मैक्सिमम, ब्लू लाइट में भी होता है, लेकिन ये जो ग्रीन लाइट है इसमें मिनिमम फोटोसिंथेसिस होता है. नाउ व्हाई वुड दैट बी? व्हाई डू यू थिंक कि ग्रीन लाइट जो है उसमें फोटोसिंथेसिस थोड़ा मिनिमम होता है? ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट मिनिमम होता है. व्हाई इज इट? जस्ट थिंक. ओके, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो जैसे कोई भी सरफेस है, अगर मैं किसी जगह पे टोटल अंधेरा कर दूं तो आपको डार्कनेस में ज्यादा चीजें नजर नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी लाइट होगी आपको थोड़ा कुछ नजर आता रहेगा, और जैसे जैसे ज्यादा लाइट होगी आपको कलर्स, ब्राइट कलर्स नजर आएंगे, राइट? एंड व्हाई डू वी सी कलर? बिकॉज दैट सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग वन काइंड ऑफ लाइट. ठीक है ना? जैसे व्हाइट रिफ्लेक्ट्स ऑल द कलर्स, ब्लैक अब्सॉर्ब्स ऑल द कलर्स. आपने सुना होगा कि गर्मियों में you shouldn't be wearing black because it absorbs light, right?
व्हाइट में आप व्हाइट या लाइट कलर क्लोथ्स में यू फील कंफर्टेबल. व्हाई? बिकॉज दोज रेडिएशंस और लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, तो आपको थोड़ा कम गर्मी लगती है. तो द सेम थिंग, रेड लाइट अब्सॉर्ब होती है, ब्लू भी अब्सॉर्ब होती है, अदर वेवलेंथ्स आर अब्सॉर्ब, लेकिन ग्रीन लीफ किस कलर की नजर आती है? हमें कोई भी कलर तब नजर आता है ना जब वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है या वापस आ रही है. तो अगर लीफ ग्रीन कलर की है तो वो हमें ग्रीन नजर क्यों आ रही है? बिकॉज ग्रीन लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ. और अगर कोई चीज रिफ्लेक्ट हो रही है तो ऑब्वियसली वो इस कोई भी प्रोसेस में जो अंदर हो रहा है उसमें लेस इफेक्टिव होगी, राइट? सो दैट इज व्हाई photosynthesis occurs minimum in the green light. It does occur in blue light, occurs maximum in red light. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते भी है. मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस एक्सक्यूज मी, is red light. Minimum photosynthesis occurs, excuse me, minimum photosynthesis is green light. Okay, so red and blue light में अच्छा होता है, मिनिमम होता है ग्रीन लाइट में. सो दिस इज अबाउट सनलाइट. और जितनी अच्छी सनलाइट होती है फोटोसिंथेसिस उतना ही अच्छा होगा. यही नहीं, सनलाइट के अलावा भी फोटोसिंथेसिस डज अकर इन आर्टिफिशियल लाइट. ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिपेंडेंट ऑन लाइट, तो वो आर्टिफिशियल लाइट में भी होता है. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर photosynthesis, that is sunlight. As I told you, all the ways, जो यहाँ से इस साइड हो गया अल्ट्रावायलेट आपने सुना होगा, इंफ्रारेड आपने सुना होगा, राइट? So those are the radiations which we do not notice, but the visible light is one which we see. It is made up of 7 colors, and out of those 7 colors, photosynthesis occurs in red and blue very well. It occurs minimum in green. Maximum होता है रेड में, ब्लू में भी होता है अच्छा, लेकिन ग्रीन में इट occurs in the minimum amount. ठीक है, so this is about sunlight. So this was the first thing. Now second thing हम पढ़ते हैं. The second thing which we talk about is chlorophyll. Now let us talk about this. This chlorophyll is a very very important requirement for photosynthesis. आप जानते हैं क्लोरोफिल के बिना जिस भी चीज में क्लोरोफिल नहीं होता है, it is not able to do photosynthesis. Why? Because chlorophyll is one kind of pigment. Pigment, color giving substance. So pigment which has the capacity to harvest solar energy, harvest या absorb solar energy. जो चीज सनलाइट को या एनर्जी फ्रॉम द सन और लाइट फ्रॉम द सन को अब्सॉर्ब कर सकती है, वो है पिगमेंट विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल. और क्योंकि इसके पास ऐसी कैपेसिटी है, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? सो क्लोरोफिल के बारे में अगर हम लिखें, इट इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट और इसी की वजह से क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल. ठीक है, अब क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है. प्लांट के अंदर क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है या जो फॉर्मूला है, क्लोरोफिल आर बेसिकली ऑफ मेनी टाइप्स. जैसे हो सकता है क्लोरोफिल ए है,
B है chlorophyll B, chlorophyll C, D, E and then there is bacteriochlorophyll. ठीक है, अब ये सारे little bit differ करते हैं in their composition. जैसे they all have carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and magnesium, but the amount थोड़ा सा structure differ करता है. Maximum जो occur करता है वो है chlorophyll A and chlorophyll B. जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है वो क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B है. ठीक है, और इसका जो अगर हम स्ट्रक्चर बोले तो दिस इज C55. इट हैज H, हाइड्रोजन, इट हैज ऑक्सीजन, इट हैज नाइट्रोजन एंड इट हैज मैग्नीशियम. दिस इज एक्सक्यूज मी मैग्नीशियम. इसका नंबर जो ये ऑक्सीजन है थोड़ा सा डिफर कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज H72O5 Mg और इसमें है C55 H70O6 नाइट्रोजन 4 एंड मैग्नीशियम. ठीक है, सो दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोफिल A एंड B. थोड़ा सा ही डिफर करता है, नॉट मोर. Right here, so you can write N here or O here. In your notes it may be nitrogen is mentioned here. ठीक है, that is okay, but this is the chemical composition. और थोड़ा ही differ करते हैं और maximum plants में ये occur करते हैं in the maximum amount. अब यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, this magnesium. What is chlorophyll? Chlorophyll is a pigment which has nitrogen. यहाँ पे जैसे ये 4 नाइट्रोजन है ना, दे आर अरेंज्ड इन अ रिंग्ड मैनर अराउंड अ सेंट्रल मैग्नीशियम आयन. तो आप जानते हो मैग्नीशियम वाज कंसिडर्ड टू बी अ मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट. 9th में हमने पढ़ा था ना कि मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं कुछ प्लांट्स के लिए, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं बाय द प्लांट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है, तो मैग्नीशियम इज वन nutrient which is required in high quantity. Why? Because it is a central ion for chlorophyll. तो chlorophyll में इसकी chlorophyll बनने के लिए magnesium is required. So can you see the importance of magnesium? आप जानते हो हमारे hemoglobin भी एक pigment है जो हमारी body में होता है, right? रेड कलर आपने पढ़ा होगा अपन ट्रांसपोर्टेशन के में, उसके बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन उसमें आयन होता है. ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है. ठीक है, सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल जो सबसे ज्यादा अकर करते हैं इन प्लांट्स. अब क्लोरोफिल का रोल ये है कि वो अब्सॉर्ब कर लेती है सनलाइट और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है. लेकिन क्लोरोफिल एक ही पिगमेंट नहीं है इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर और भी कुछ लाइट अब्सॉर्बिंग पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं. ठीक है, सो देर आर सर्टन along with chlorophyll there are certain other light absorbing pigments which are called carotenoids. और इसमें मेनली 2 कैटेगरीज हैं. वन इज carotene which is orange in color. Second is xanthophylls which are yellow in color. Orange color आप जानते हो ना किस में होता है? एग्जाम्पल कैरेट कह सकती हूं मैं. और आप जानते हैं ये कैरेट कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है आईसाइट के लिए, होता है ना. Why is it? Because ये जो कैरोटीन है इट इज अ प्रीकर्सर फॉर विटामिन ए. आप जानते हो आईसाइट के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा रहता है और उसके बनने के लिए प्रीकर्सर मतलब एक पहला कंपाउंड, कोई चीज जब बनती है ना तो कई पाथ को फॉलो करके बनती है. पहले कुछ सिंथेसाइज होता है फिर कुछ और. दिस कैरोटीन विटामिन ए के बनने के लिए एक प्रीकर्सर है. पहले कैरोटीन
आता है जो हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए. सो इट इज अ प्रीकर्सर in the formation of vitamin A, and that is why eating carrots is very good for your eyesight. Got it? So orange color in carrot. Xanthophylls आप जानते हैं किसमें होता है? मेज होता है ना जो, उसमें होता है. तो that is, those are the pigments, and you know plants contain petals also, fruits with different colors, so they have many pigments. लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल के साथ साथ दूसरे लाइट अब्सॉर्बिंग पिगमेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं कैरोटीनॉइड्स. वो है कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, 2 क्लासेस में है. आपने कभी फाइकोबिलिन के बारे में सोचा होगा? रेड ब्लू ग्रीन एल्गी में, सॉरी ग्रीन नहीं, रेड ब्लू ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं, बट दैट इज डिफरेंट कलर. बट कैरोटीनॉइड्स ये है. ठीक है. अब ये कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल मिलके what is done? I told you one thing. This chlorophyll is present on the, this was the thylakoid. Remember I had drawn the diagram of grana, ऐसा था ना, और ये एक thylakoid था. ये क्लोरोफिल और ये कैरोटीनॉइड्स इसकी मेम्ब्रेन पे होते हैं. ठीक है. और मेम्ब्रेन पे they form structures which are called कॉन्टासोम्स. ठीक है. ये दोनों जैसे बोथ दीज क्लोरोफिल प्लस कैरोटीनॉइड्स गिव द क्वांटासोम. समझ में आया? क्वांटासोम क्या होता है? एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्लोरोफिल भी है, कैरोटीनॉइड्स भी है. समवेयर अराउंड 230 to 250 हो सकता है, लेकिन 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्लस समवेयर अराउंड 50 कैरोटीनॉइड साथ में मिलके बनाते हैं एक कॉन्टासोम्स, एंड दे आर अरेंज्ड इन द ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकोइड. और यही स्ट्रक्चर्स they form ultimately light absorbing systems which are called photosystem 1, photosystem 2. ये आप later on पढ़ेंगे, लेकिन क्वांटासोम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि what are they. And light comes in the form of photons. So if this was the sunlight, it comes in the form of photons and it falls on this and it is absorbed and the process of photosynthesis starts. Got it? I hope it is clear to you. Okay. So this was it. This was about chlorophyll. Do you get it? Okay. I'll wait for a minute so that if you want to write, you can write it down. Chlorophyll की अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल की अब्सॉर्प्शन कौन सी वेवलेंथ को अच्छी अब्सॉर्ब करता है? टोल्ड यू अबाउट रेड एंड ब्लू, टोल्ड यू अबाउट ग्रीन आल्सो. ये ग्रीन रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये ग्रीन को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, तो मिनिमम फोटोसिंथेसिस होता है. अब दीज बोथ फॉर्म द कॉन्टासोम्स. ठीक है. समवेयर लाइक अगर हम इमेजिन करें तो इट विल बी लाइक ऑन द मेम्ब्रेन देयर आर स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, है ना. मेम्ब्रेन के ऊपर क्वांटासोम होता है. क्लोरोफिल के साथ कैरोटीनॉइड्स होने से क्लोरोफिल को एक तरह का प्रोटेक्शन मिलता है. व्हाट इज द रोल ऑफ कैरोटीनॉइड्स? दे आल्सो कैन अब्सॉर्ब लाइट. तो ये क्या करते हैं? दे अब्सॉर्ब द एक्सेसिव सनलाइट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द सन, सोलर एनर्जी, एंड क्लोरोफिल को उतना दे इन अ वे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम एक्सेसिव सनलाइट. And second, also they protect from photo oxidation. यहाँ पे मैं लिखती हूँ, or wait, it might not be visible to you. I'll just write these. Protect chlorophyll from excessive sunlight. By how will they do it? By absorbing it
and prevent photo oxidation. Oxidation reduction आपने पढ़ा, oxidation is a type of chemical reaction. Photo oxidation, oxidation occurring in the presence of light. Excessive light होगा, photo oxidation of chlorophyll and other cells हो सकता है, उससे बचाता है. So that is the role of carotenoids. So in a way they are called accessory pigments. Main chlorophyll है, accessory pigments उसको help करता है in a way by absorbing the excessive sunlight, और chlorophyll तक उतनी ही पहुंचती है जितना photosynthesis के लिए required है. In a way उसको protect करते हैं, right? So is this clear to you? Okay, I hope you have written it down. ठीक है, हमने sunlight पढ़ लिया, हमने chlorophyll पढ़ लिया. Take a minute to write it down and review. If you have any doubt about it, you can put it or raise the question on the WhatsApp group. I'll send a message there. So if you have a doubt, you can ask me there. Right now हमने sunlight के बारे में पढ़ा, हमने chlorophyll के बारे में पढ़ा. Hope you have understood it. Chlorophyll क्या है? Green colored pigment. Pigment वो होता है जिसमें color होता है, और इसके अंदर obviously कैसा color है? Green color. Carotenoids क्या है? वो भी pigments ही है. You can write this. I'll write it. Pigments, जिसका एक है carotene which is orange in color, xanthophyll which is yellow in color. They collectively are located on the thylakoid membrane. ये thylakoid कहाँ था? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में था ना, ग्राना का पार्ट था, ग्रानम में. जो एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, या हमेशा देती हूँ कि हम जैसे एक कॉइन्स का पाइल बना ले और फिर एक कॉइन को उठाए तो दैट इज द थाइलाकॉइड, एंड द होल पाइल और द होल स्टैक इज द ग्राना. तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वांटोसोम्स. क्वांटोसोम हैज 230 chlorophyll molecules, somewhere around 50 carotenoids, and collectively they form structures which can harvest or absorb sunlight. They act as photosystems, photosystem 1 and photosystem 2 located on the membranes. ठीक है, larger quantosomes photosystem 2 को बना देते हैं, smaller ones 1 को, लेकिन that is not a part of your course. You'll be studying about it in the 11th standard, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए. ठीक है, so this is clear? Okay, so now let us take up the third requirement. The third requirement for photosynthesis is carbon dioxide. And as we know, इसका source क्या है? Atmosphere. Plants take up carbon dioxide from the atmosphere. और किससे लेते हैं ये? They take with the help of structures which are called stomata. मैंने आपको जब leaf का structure बताया था तब आपको बताया था about stomatal pores. Little अगर मैं ज़्यादा बताऊं तो stomata are structures which are like this, more in the lower epidermis of the plant, very few in the upper epidermis. Here there will be accessory cells like this, right? These cells are the accessory cells. ये कौन से epidermal cells होंगे, right? तो epidermal cells हैं जो इसके आसपास होंगे. ठीक है, okay, and this one is the guard cell. Let me read it. ये stomatal apparatus guard cells है, which are guard cells आप जानते हैं, they are shaped like a
किडनी और अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, है ना। एंड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, मैंने अगर आप जानते हैं 9th में आपने पढ़ा था अबाउट बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। एक चीज मैं और बताऊं आपको, ऐसे गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन डाइकॉट्स, इन मोनोकॉट्स। आपने पढ़ा है ना डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में। वन कॉटिलेडन है तो द प्लांट इज मोनोकॉट, दो है तो डाइकॉट। ये अपन ने 9th में पढ़ा था डिफरेंस एंजियोस्पर्म्स में, रिमेंबर अ लिटिल बिट, या। तो द स्ट्रक्चर और द शेप ऑफ guard cells in dicots is bean shaped like this, and in monocots is dumbbell shaped, ठीक है। अभी मैंने डाइकॉट वाला बनाया है। These cells are accessory cells, so they will be epidermal cells or epidermis में। This is the stomatal pore, इसी को हम ज्यादातर स्टोमेटा बोल देते हैं। इसके अंदर आई हैव टोल्ड यू देयर इज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक दिस विच आर क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? दे आर क्लोरोप्लास्ट। सो ओनली एपिडर्मल सेल्स विच हैव क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट आर द गार्ड सेल्स। और इसके साथ साथ इसमें there is obviously the presence of a nucleus. What is this? This is the nucleus. ठीक है, तो ये कई बार आपको लेबल करने के लिए डायग्राम पूछा जाता है। सो जस्ट पे अटेंशन, ये वाला जो बड़ा सा डॉट होगा वो होगा न्यूक्लियस, आसपास के होंगे क्लोरोप्लास्ट, ये स्टोमेटल पोर है, ये गार्ड सेल्स है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। और ये स्टोमेटल पोर क्लोज्ड भी रह सकता है और ओपन भी रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट। फॉर एग्जाम्पल वाटर की कमी है तब भी ये क्लोज्ड रहेगा, CO2 की रिक्वायरमेंट है तब ये ओपन रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द प्लांट एंड द सिचुएशन विच इट इज फेसिंग। the guard cells lose water or gain water and they let the stomatal pore be open or be closed, ठीक है। और the source of CO2 भी plant stomata से ही लेता है। अब this I'm talking about terrestrial plants या land plants, जो land पे होते हैं उन plants के बारे में बात कर रही हूँ। अगर कोई भी प्लांट वाटर के अंदर है या हाइड्रोफाइट्स, दे टेक अप CO2 थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस, पूरे बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं। सो दे समटाइम्स डू मोर, एक्चुअली दे डू मोर फोटोसिंथेसिस कंपेयर टू द लैंड प्लांट्स, ठीक है। वो हाइड्रोफाइट बोलते हैं उनको, जो वाटर प्लांट होते हैं ना, हाइड्रोफाइट से। तो दे टेक CO2 थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस। ओके, इज दैट मच क्लियर? Okay, so this was about carbon dioxide. अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ लिया। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूटिलाइज करता है, प्लांट लेता है। इसीलिए तो प्लांट को हम कहते हैं दे आर प्योरिफायर्स फॉर द एटमोस्फियर, राइट। दे टेक अप एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन, अभी मैं आपको ये बताऊं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके एंड में एनर्जी प्रोडक्शन होता है बट साथ साथ CO2 भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस में CO2 यूटिलाइज होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या रेस्पिरेशन के लिए के दौरान या एट द एंड ऑफ रेस्पिरेशन CO2 इज रिलीज्ड, राइट। तो प्रोड्यूस हो रहा है, एक प्रोसेस में यूटिलाइज हो रहा है, दूसरे में प्रोड्यूस हो रहा है। और प्लांट्स भी माइंडेड, दे डू रेस्पिरेशन, दे डू रिक्वायर एनर्जी, वो अपना खाना बना लेते हैं खुद। खाना बनाने के बाद उसमें से एनर्जी प्रोडक्शन भी तो जरूरत पड़ेगी उनको, तो उसके लिए दे ऑल्सो रेस्पायर, ठीक है। और रेस्पिरेशन के एंड में CO2 प्रोड्यूस होता है। तो दिन में कुछ समय में या कुछ समय ऐसा आता है जब the amount of CO2 utilized by the plant
or taken up during photosynthesis becomes equal to the CO2 released during respiration. ठीक है, जितना प्लांट ने CO2 लिया उतना ही रिलीज कर दिया. तो that point occurs during low intensity lights. जैसे अर्ली मॉर्निंग में लाइट होती है लेकिन इतनी ब्राइट नहीं होती, इवनिंग में भी थोड़ी सी लाइट होती है लेकिन इतनी ब्राइट नहीं होती. तो उस समय ऐसा पॉइंट आता है जब प्लांट जितना CO2 लेता है उतना ही CO2 प्रोड्यूस करता है या रिलीज करता है. यूटिलाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. दैट पॉइंट इज कॉल्ड कंपेंसेशन पॉइंट. ठीक है, सो आई जस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट व्हाट इज compensation point. I hope you have drawn this and you have understood about this. Okay, so I'll just rub this out and tell you more about compensation point. ठीक है, what is a point or a time at which amount of CO2 utilized during photosynthesis or taken up during photosynthesis becomes equal to the amount of CO2 released or produced during respiration. This is called compensation point. What is compensation point? Compensation point is a point at which amount of CO2 utilized during photosynthesis becomes equal to the amount of CO2 released or produced during respiration, and it occurs at early morning or evening when the intensity of light is low. ठीक है, compensation point occur करता है. ठीक है, तो hope you've understood what is compensation point. ठीक है, अब just if you're writing you can write it for a minute. This is not being mentioned in NCERT, लेकिन हम थोड़ा सा उसके बारे में हमें जानना चाहिए, right? तो this is compensation point. I hope you've understood. रिक्वायरमेंट CO2 भी है. कैसे प्लांट लेता है? स्टोमेटा के थ्रू लेता है. बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, अच्छी लाइट होती है, तब फोटोसिंथेसिस अच्छा चल रहा होता है, तब तो वो ज़्यादा CO2 लेता है और रेस्पिरेशन में कम बनाता है. लेकिन एक पॉइंट पे ऐसा आता है जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपेंसेशन पॉइंट. ओके, होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट and the last point or the last requirement which is very essential for plant to do photosynthesis is water, right? Water, as you know, very important. और water plant किससे लेता है? Taken up with the help of xylem tissue. आपको याद है व्हाट इज द जाइलम टिश्यू? हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. जाइलम इज अ टिश्यू व्हिच हेल्प्स इन असेंट ऑफ सैप और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. वाटर इज टेकन अप फ्रॉम वेयर? वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, ऑब्वियसली. ठीक है, सो वाटर इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट. और इसका एक चीज ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के एंड में, उसका सोर्स क्या है या हमें कहाँ से मिलता है, किस चीज से मिलता है?
वो है वाटर. इट इज द सोर्स फॉर oxygen produced during photosynthesis. Got it? ठीक है. So hope you getting it. and xylem phloem के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, और भी पढ़ेंगे जब हम ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे. सो डजंट मैटर इफ यू फॉरगॉट, वील रिवाइज इट. लेकिन बार बार मैं आपको कहती हूँ, व्हेन यू आर फेसिंग और व्हेन यू आर गोइंग टू फेस द एनटीएससी एग्जाम, आपको 9th का पोर्शन भी याद होना चाहिए. सो डू कीप रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन, इट वुड बी रियली हेल्पफुल. ओके, अभी तो आपके पास टाइम भी है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट वाटर. नाउ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अपन ने बात की. ये सारे एसेंशियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस है या रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस है. ये चारों चीजें, इनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं. लेकिन कई बार वर्ड आ जाता है रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस. क्या आता है? अब कुछ जगहों पे रॉ मटेरियल्स पूछते हैं, जब एट दैट टाइम ऑल्सो ऑल फोर आर मेंशन. व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स? तो अगर आप एनसीईआरटी में आंसर कर रहे हैं इन योर स्कूल एग्जाम्स, इट इज बेटर टू मेंशन ऑल फोर, बट वी शुड नो एग्जैक्ट. जैसे कोई ओलंपियाड एग्जाम में पूछा गया, स्पेसिफिकली आपको पूछा गया और ऐसे ऑप्शंस दे दिए कि एक में चारों सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, एक में दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोन, कुछ और ऐसे ऑप्शंस दे दिए. तो इट्स बेटर स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस. वन इज CO2, अदर इज H2O. इन दोनों को एग्जैक्ट रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस बोला जाता है. अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं. रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, अब कोई भी प्रोसेस होता है तो रॉ मटेरियल कौन सी चीज होती है जो यूटिलाइज होती है उस प्रोसेस में. कई चीजें होती है जो हेल्पफुल होती हैं, बट एट द एंड ऑफ द प्रोसेस दे रिमेन एज इट इज. बट सम मटेरियल इज ऑलवेज यूज्ड अप ड्यूरिंग अ प्रोसेस एंड बेसिकली दोज आर द रॉ मटेरियल्स. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आप समझ पाएंगे कि भाई CO2 एंड H2 आर एग्जैक्टली द रॉ मटेरियल. सनलाइट, क्लोरोफिल भी है एसेंशियल रिक्वायरमेंट, उनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता. लेकिन व्हाई आर CO2 एंड H2O स्पेसिफिकली कॉल्ड रॉ मटेरियल्स? इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मान लीजिए एक पर्सन है या आप ही हैं जो आपको कभी अभी फ्री टाइम में मन हुआ कि चलो कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ इनोवेटिव चीज करते हैं. तो मिट्टी से, बिकॉज यू डोंट हैव मेनी थिंग्स अवेलेबल राइट नाउ, राइट? सो लेट्स मेक सम काइंड ऑफ टॉय और सम काइंड ऑफ हाउस और समथिंग एल्स आउट ऑफ मड. और मिट्टी से हम कुछ खिलौना बनाते हैं, या ऐसा आपके मन में आता है मान लीजिए, या कोई और ही बना रहा है. मान लीजिए आप वो प्रोसेस देख रहे हैं, उसमें एक पूरा प्रोसेस लगता है. एट द एंड यू विल गेट the toy you want or the thing which somebody else is making, the product आपको मिलेगा end of that process. वैसा ही एक प्रोसेस है, मान लीजिए फोटोसिंथेसिस. सनलाइट आती है, क्लोरोफिल है, अब्सॉर्ब करता है, पूरा प्रोसेस होता है और एंड रिजल्ट क्या होता है? यू गेट ग्लूकोज. ठीक है, तो एक प्रोसेस है ये भी. ओके, अब हम दोनों को कंपेयर करके थोड़ा सा समझते हैं कि रॉ मटेरियल हम एग्जैक्टली राइट क्यों CO2 और H2O को बोलते हैं. बिकॉज सी, जैसे मिट्टी का हमें खिलौना बनाना है तो हम पहले क्या करेंगे? वील टेक अप सॉइल या मड या मिट्टी हम लेके आएंगे. ठीक है, उसके साथ साथ हम बर्तन भी लेके आएंगे कुछ, जिसके अंदर हम उसको मिक्स करेंगे. देन वील ऑल्सो हैव अ मोल्ड और अ पॉटरी व्हील और समथिंग और एनी काइंड ऑफ मोल्ड जिसमें हम मिट्टी डालेंगे और वो शेप देंगे, राइट? यू रिक्वायर दैट.
यू विल रिक्वायर अदर स्मॉल थिंग्स ऑल्सो, जैसे फोटोसिंथेसिस में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंजाइम्स होती है, कुछ कुछ होती हैं, यू रिक्वायर ऑल ऑफ देम। उन सब के बिना आप कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन आपको मिट्टी लेनी है और इस मिट्टी को मोल्ड में डालना, और उसमें डालने से, आप सूखी मिट्टी डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो आप पहले उसको किस में मिक्स करेंगे, वाटर में एक्सक्यूज मी। तो ये वो प्रोसेस है, मिट्टी ली आपने, वाटर मिक्स किया, यू यूज्ड योर हैंड्स और सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू mix it up, then you use the mold, and then you got a product, the खिलौना है या whatever you have made, and you feel very happy, right? And so compared to this, photosynthesis के एंड में आपको मिलता है ग्लूकोज। अब आपने खिलौना बना लिया, उसके बाद आपने उसको रख लिया, then you go wash your hands because they became dirty. Second, you wash the utensil or the vessel and the mold which you used, all the small things, and they are as they are, right? वैसे मिल जाएंगे आपको। लेकिन अब मैं आपको कहूंगी कि ठीक है, आप अपन को सारे अपने हाथ भी बिल्कुल साफ हो गए, सब कुछ, ये एसेंशियल थे, इसके बिना अपना प्रोसेस नहीं हो सकता था, लेकिन मुझे तो मिट्टी और पानी वापस वैसा ही लाओ, तो क्या आप वैसा ही ला पाएंगे? नो, दे हैव बीन यूज्ड अप इन द प्रोसेस, राइट? So you will not get them in the original form. They have combined and they've given you something different, right? तो प्रोसेस में यूटिलाइज हो गए, इसीलिए राइटली वी कैन कॉल देम द रॉ मटेरियल्स। वैसे ही जब फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है ना, यू गेट ग्लूकोज C6H12O6, तो यू विल नेवर गेट कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग यूटिलाइज्ड, इट इज बीइंग रिड्यूस्ड, वाटर ऑल्सो इज बीइंग यूज्ड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है? सनलाइट, क्लोरोफिल ultimately remain in the same way as they were. So it is rightly said that CO2 and H2O are the raw materials for photosynthesis, and sunlight and chlorophyll are essentials. लेकिन to be on the safer side, when you write, अगर आपको raw material पूछ लिया स्कूल एग्जाम्स में और स्पेसिफिकली नहीं बताया गया, तो आप चारों लिख दीजिए, तो टू बी ऑन द सेफर साइड। बट नॉलेज आपको ये होना चाहिए कि द एग्जैक्ट रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। होप यू अंडरस्टूड। ओके, सो द लेक्चर or the part on requirements of photosynthesis we end here, इतना हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे about the mechanism of photosynthesis. So mechanism, I hope you've written down this much. Okay, so I'll just rub this out. Okay, so the next topic which will be the requirements हमने पढ़ लिया। The next topic will be the mechanism या the process of photosynthesis. As I said, the process of photosynthesis occurs in the where does it occur? It occurs in the mesophyll tissue. पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, क्लोरोप्लास्ट उसका साइट है। एक चीज और बताऊं आपको, फोटोसिंथेसिस का साइट क्लोरोप्लास्ट है इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है 9th में, राइट? जिनका न्यूक्लियस प्रॉपर होता है, और एक सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है बैक्टीरिया, जिनका न्यूक्लियस इज नॉट प्रॉपर और दे डोंट, इट डजंट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप, राइट? Those are prokaryotes. उनके अंदर डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल या मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल नहीं होते। ये अपन ने डिफरेंस पढ़ा था ना, मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। तो फिर उनमें व्हाट वुड बी द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? इन प्रोकैरियोट्स, जस्ट लेट मी राइट, इन प्रोकैरियोट्स the site of photosynthesis is lamellar। lamellar तो मैंने आपको बताया था, flattened structure, chromatophores क्या होते हैं? structures like lamellae, flat structures
which can do photosynthesis. In eukaryotic cells, site for photosynthesis is chloroplast. Okay, ये आप लिखिए. Just keep in mind chromatophores बैक्टीरिया में होता है. Why? Because they do not have membranous structure और chloroplast तो आप जानते हैं is a double membranous structure. ठीक है? Hope that is clear to you. Okay. So now let us move on to our second topic, that is mechanism of photosynthesis. अब mechanism of photosynthesis NCERT में it has been given in 3 points. So first let us cover that topic. If you have to write about photosynthesis in your school exam, you have to explain the process of photosynthesis in your school exams. What do you write? Excuse me. First point is given as absorption of light by chlorophyll. जो पहला पॉइंट दे रखा है वो है absorption of light by chlorophyll. जैसे ही सनलाइट क्लोरोफिल के ऊपर आती है वो उसको ऑब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है? So that is the first point. Second point given is splitting of water molecules to release. तो जैसे ही लाइट गिरती है on the chlorophyll, electrons in the outermost orbit of chlorophyll get excited and they leave their orbit and start moving. That is the start of photosynthesis. इस प्रोसेस के लिए कई बार कुछ बुक्स में वर्ड आ जाता है फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है? This is the starting of a reaction called light reaction. साथ साथ light is also falling on the water molecule. तो water molecule breaks. H2O होता है तो break करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज करता है एटम्स और ऑक्सीजन combines with another oxygen atom and moves out of the stomata. So you see oxygen is released here. इस प्रोसेस को कई बार word is used is photolysis of H2O. Photo, light, lysis, breaking of H2O in the presence of light is termed as photolysis. So this is the second point which has been mentioned in NCERT. And the third point which is mentioned is reduction of carbon dioxide to form carbohydrates. What is carbohydrate? Glucose is one type of carbohydrate. So third thing mentioned is reduction of carbon dioxide to carbohydrate. और जो नीचे बॉक्स दे रखा है उसमें आपको मेंशन किया हुआ है अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी आल्सो. सो दैट इज मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ. लाइट क्लोरोफिल के ऊपर गिरती है. क्लोरोफिल्स के जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट हो जाए बिकॉज लाइट का इम्पैक्ट हुआ है तो ऑब्वियसली कुछ चेंज तो आएगा. तो वो इलेक्ट्रॉन्स दे move out of their orbital.
and they start the journey. Same in that, so that is the starting point for photosynthesis. The second क्या होता है, लाइट गिरती है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर. वाटर के ऊपर लाइट गिरती है तो वाटर ऑल्सो स्प्लिट्स डाउन, ब्रेक्स डाउन, एंड इन दैट प्रोसेस इज रिलीज्ड ऑक्सीजन गैस, जो हमारे लिए बहुत असेंशियल है. ऑक्सीजन रिलीज होती है. थर्ड इज, जो कार्बन डाइऑक्साइड आया था एटमॉस्फेयर से, वो रिड्यूस हो जाता है टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट क्या है, कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन. ग्लूकोज इज वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ग्लूकोज जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो दे फॉर्म स्टार्च. स्टार्च क्या है, कलेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. स्टार्च, और स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है. ठीक है, स्टोर स्टार्च के फॉर्म में होता है. स्टार्च इज इनसॉल्यूबल, ग्लूकोज इज सोल्यूबल इन द स्ट्रोमा. एक लिक्विडी पोर्शन है ना स्ट्रोमा, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. एक चीज ध्यान रखना, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट जो होता है ना फ्लोएम टिश्यू से टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच रिक्वायर फूड, वो भी एक सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, शुगर सॉल्यूशन. या के आगे मेंशन्ड है, ट्रांसपोर्टेशन में अपन पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स है. सो क्लोरोफिल इज यूज्ड, वाटर इज यूज्ड, एंड वी गेट ग्लूकोज. और ये कब होता है, जब सनलाइट गिरती है. ठीक है, एंड सो टू मेमोराइज और रिवाइज जो इक्वेशन था, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 glucose plus 6O2 plus 6H2O. ठीक है, तो ये इक्वेशन है फॉर फोटोसिंथेसिस. इसके एंड में आपको ये मिलता है. ठीक है, दिस, सो यू गेट द रिजल्ट. दिस इज द इक्वेशन, एक्सप्रेशन. और इसके लिए ये भी कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी, सनलाइट की जो एनर्जी थी, इट इज कन्वर्टेड टू अ केमिकल एनर्जी, दैट इज carbohydrates. Light energy converted to chemical energy which is stored, that is, or you can say glucose. So ये कहा जाता है in this process this occurs. ठीक है, so ये आपको क्लियर हो गया. ये कई बार पूछा जाता है, which is the process in which light energy is converted to chemical energy. It is photosynthesis. Light energy converted to chemical energy. What is the chemical energy? Carbohydrate which is stored in the chloroplast of the plant and utilized whenever required. ठीक है, so I hope you have understood this. This is the basic mechanism. The steps involved are the light reaction and dark reaction. लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग आपको इतना ही लिखना है. ठीक है, जब आपकी स्कूल एग्जाम्स में आए तो आपको ये एक इक्वेशन बतानी है और ये सारी चीजें लिखनी है. ठीक है, सो जस्ट नोट इट डाउन एज अ आंसर फॉर योर NCERT पोर्शन और योर स्कूल एग्जाम्स में आपको ये लिखना है. जस्ट, और यू मेंशन दिस पॉइंट, photosynthesis is a process in which light energy is converted to chemical energy. The steps involved are these. The equation is this. ठीक है, ये मिल गया आपको. इसके साथ साथ one thing is mentioned, इस process में, in this whole process, ATP आप जानते हो क्या है? In this whole process, let me write it here. In this process, ATP, what is ATP? Adenosine
phosphate is also formed ATP। और ये क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अगर आपको याद हो तो हमें या प्लांट को या किसी भी चीज को जो एनर्जी मिलती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, adenosine triphosphate। तो ATPs also are produced, adenosine triphosphate, from ADP। ADP क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट means 2-phosphate, triphosphate means 3-phosphate। समझ में आया? So this ADP is a low energy molecule which is present in the chloroplast। और इसके अंदर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये प्लांट कहाँ से होता है? फॉस्फेट इज अ मिनरल टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। ये मिलके देते हैं ATP। एक और 2 फॉस्फेट थे डाइफॉस्फेट, तो तीसरा मिल गया तो बनकर ट्राइफॉस्फेट। ये आपके बॉक्स में मेंशन है इन द NCERT। दिस इज द प्रोसेस। सो ATP is also produced from ADP। in this process you can mention and this step, it mechanism में आप ये लिखेंगे, but you should know this has been mentioned in the box। इस प्रोसेस के लिए कई बार वर्ड आ जाता है फोटो फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन प्रोडक्शन ऑफ ATP, फोटो मतलब लाइट, ठीक है। So that is, but you don't need to mention that when you're mentioning the mechanism। So I've written it in blue here, the mechanism of photosynthesis। This is an additional point which you should know। It can be in the form of a multiple choice question। Sometimes teachers may ask you about this, so you should know। This can be mentioned। This has to be the first point, conversion of light energy to chemical energy, the whole mechanism and the equation। Then you get good marks if you present it this way। I hope you understood। This is the basic mechanism of photosynthesis। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अबाउट दिस, इसका जो प्रोसेस है, इट अकर्स बेसिकली इन द क्लोरोप्लास्ट। इन द ग्राना अकर्स लाइट रिएक्शन। जो ये दोनों स्टेप लाइट रिएक्शन के हैं, दिस स्टेप इज ऑफ द डार्क रिएक्शन। लेकिन हमें NCERT में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। सो राइट नाउ we end this lecture with this। I'll just wait for 2 minutes so that you can note it down। और आप तो in a good position है, you're in a very good position, you can pause it and just write it down if you want to, ठीक है। So I hope you have understood this much। If you have not, do not worry, relax, read it twice, you will understand। जहाँ पे भी डाउट आता है आप मेरे को WhatsApp ग्रुप पे क्वेश्चन पूछ सकते। आई वुड बी क्लियरिंग योर डाउट्स देयर। Even if you do not understand in one time, it's okay, you can ask me again so that the concept is clear in your mind। Hope just write it down। सिंपल सी चीज है, क्लोरोफिल के ऊपर लाइट गिरती है, क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सेकेंड, उसी वक्त लाइट किसके ऊपर गिरती है? वाटर के ऊपर भी गिरती है। तो वाटर के ऊपर भी सनलाइट गिरी तो वाटर स्प्लिट हो गया, इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। ऑब्वियसली वाटर स्प्लिट होगा तो किससे बना है? H2O। सो इट विल HO and H, ठीक है ना। सो दिस विल बी प्रोड्यूस्ड। इतना समझ में आ रहा है ना? H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेट आउट, सो एंड दैट रिलीजेस ऑक्सीजन। उसी वक्त ग्राना जो था उसमें तो ये हो रहा था, तो उसी वक्त स्ट्रोमा में क्या हो रहा था? इस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा था टू ग्लूकोज, ठीक है। एंड सो वी वर गेटिंग अ केमिकल एनर्जी दैट वाज ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज अल्टीमेटली इज collectively converted to starch which is stored in a plant। So storage plant as form of glucose in plant is starch। What is starch? Glucose plus glucose, n number of glucose molecules collectively joined together form starch, ठीक है। तो इतना क्लियर है आपको?
ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक मैकेनिज्म. इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे. आपको जो भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं, बट प्लीज रीड, रिवाइज एंड री रिवाइज. अभी आपके पास जब तक टाइम है आप हर चीज को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें, और this would be a base and would make your board exams very easy for you, because now you know the whole course is coming, no, so you have to learn step by step. ठीक है, तो आप easily relax करें, study well. When you're relaxed, your mind grasps better and feel that you will understand everything. वही main चीज है जो आपको help करेगी. Your thoughts, let them be positive, that you are good and you would learn everything well and you would study well. Okay, so here we end the this lecture. Next time we will continue further. Okay, so take care. Bye bye.